ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ z = x + ਆਈਟਾ y। x ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, y ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। x² + y² ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਦੇ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ z ਆਫ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ r cos θ + ਆਈਟਾ r sin θ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ x r cos θ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, y ਆਈਟਾ r sin θ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ tan ਇਨਵਰਸ y/x ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਾਰਟ 2, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ x ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ y ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮੇਜਨਰੀ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1 + 2 ਆਈਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ 1 ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 4 5 ਐਂਡ 2 ਆਈਟਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ, 1 2। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ 1 + 2 ਆਈਟਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, 1 ਤੇ 2 ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਬਸੀਸਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ y ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 5 - 7 ਆਈਟਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ, 5 ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ 1 2 3 4 5 ਇਹ ਆ ਗਿਆ। 7 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ -7 ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ। 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ 7 ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 5 - 7। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, 5 - 7 ਆਈਟਾ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ 0 + 0 ਆਈਟਾ, ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਵੀ 0 ਹੈ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਵੀ 0 ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 0 ਵਾਲਾ, ਉਹ 0 + 0 ਆਈਟਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਈਟਾ ਇਹ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝੋ ਵੀ 0 + ਆਈਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦਾ 0 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ 1 ਆਈਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਆਈਟਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਹ 0 1, ਇਹ 0 + 1 ਆਈਟਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਹ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਹ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ 2 + 3 ਆਈਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 0 ਤੇ 2, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜੂ 0 + 2 ਆਈਟਾ। 0 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ 2 ਆਈਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਤਾਂ 0 ਹੈਗੀ ਹੈਗਾ। -1/2 ਐਂਡ 1/2, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ -1/2 ਆਈਟਾ + 1/2 ਆਈਟਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨ ਵੀ represent two different complex numbers
with the same point in a plane। कहते कि दो अलग अलग कंपलैक्स नंबर नूं इक्को पॉइंट नाल दर्शाया भी आही पॉइंट 1+3 आइटा हो जे ते आही पॉइंट 2+4 आइटा हो जे ना, ये तो पॉसीबल ही नहीं, ये तो 1+3 आइटा ही रहूगा। एक पॉइंट इक्को ही कंपलैक्स नंबर नूं दर्शाऊगा, एक पॉइंट एक तो वध कंपलैक्स नंबर नूं रिप्रजेंट नहीं कर सकता। बस सिंपल जी गल ये है, जे मान लो एक हैगा A+ आइटा B, एक हैगा C+ आइटा D, जे सेम कंपलैक्स ने तो इक्वल होणगे ए ते सी इक्वल होगा, बी ते डी इक्वल होगा। जे ए ते सी ते बी ते डी इक्वल हो गए तो पॉइंट भी की होणगे, सेम होणगे। पर समझ गए, टू डिफरेंट कंपलैक्स नंबर्स एक पॉइंट द्वारा नहीं दर्शाए जा सकते। दो अलग अलग पॉइंट ये उस तो उल्ट गल कर रहा मैं, एक कंपलैक्स नंबर नूं नहीं दर्शा सकते। ये समझण वाली गल है। हुण विच जिहड़ा अपना मॉडुलस की आपां गल कीती सी, उहनूं उस आपां आइडिया नूं लैके चलदे। मान लो एक कंपलैक्स नंबर अपने कोल Z1 है, ये एग्जाम्पल ही है कि इफ Z1 इज इक्वल टू 2+3 आइटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3+ आइटा। एक Z1 है, एक Z2 है। प्लॉट दा नंबर Z1 + Z2, इस नंबर को प्लॉट करो। कले Z1 नहीं प्लॉट करना, कले Z2 भी नहीं प्लॉट करना, दोहां दे जोड़ नूं प्लॉट करना। कित्थे? कोआर्डीनेट प्लेन ते आलसो एक चीज़ इत्थे होर फाइंड आउट करनी है। आपां लिखते हैं कि आलसो शो दैट Z1 the modulus plus Z2 the modulus is greater than Z1 plus Z2 the modulus। गल समझ आ गई? चलो हम दो नंबर किहड़े ने, एक ये ने। पहला सब तो पहला काम की करना, आप Z1 + Z2 करते हैं। तो जदों भी दो कंपलैक्स नंबर जोड़ करना है, ये एडिशन भी विच ही आ गया, तो की करना है, रियल पार्ट रियल च जोड़ना है। इत्थे 3 सीगा प्लस आइटा। सिंपल जी गल है, रियल पार्ट में रियल च जोड़ दो, इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी जोड़ दो। रियल पार्ट कितना 2 + 3 कितना हो गया 5। इमेजनरी पार्ट क्या 3 आइटा तो 1 आइटा 4 आइटा। गल साहब च आ गई। Z1 + Z2 इज इक्वल टू 5 + 4 आइटा। इनू रिप्रजेंट करना है, आप प्लॉट करना है इतने। तो रियल पार्ट 5 1 2 3 4 5, ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। मेरे तो छोटा बड़ा लिया जाता, तुम अपने आप मैनेज करना है। इमेजनरी पार्ट 4 1 2 3 4, इट मीन जो आ पॉइंट है 5 और 4, ये किनू रिप्रजेंट करता है? Z1 + Z2 नूं। पहली गल होगी। दूजी गल कि अपने कहते Z1 का मॉड चाहिए, एक Z2 का मॉड चाहिए, एक Z1 + Z2 का मॉड चाहिए कुछ शो करने। शो की करना है, तुहानूं स्टेटमेंट से दस्सिया सी। हुण इहदा मॉड की होगा? स्क्वेयर रूट ऑफ, याद है जे ZX + आइटा Y है तो Z का मॉड की हुंदा है? रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस Y का स्क्वेयर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वेयर। रियल पार्ट कितना है इहदा 2 2 का स्क्वेयर 4, इमेजनरी पार्ट 3 है, 3 का स्क्वेयर 9, 4 + 9 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 13। गल साहब आ गई। Z2 द मॉडुलस, Z2 की है 3 + आइटा 3 का स्क्वेयर। हुण इत्थे आइटा स्क्वेयर ना कर दो, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट की है ना 1 है, तो 1 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर 9 + 1 रूट 10 आ गया। Z1 + Z2 का मॉडुलस, हुण इहदा भी मॉडुलस चाहिए आपां नूं। इहदा रियल पार्ट की है 5 स्क्वेयर, इमेजनरी पार्ट की है 4 स्क्वेयर, 25 + 16 इट मीन 41 का स्क्वेयर रूट। आप प्रूव की करना है? आप ये प्रूव करना है कि Z1 प्लस वी हैव टू प्रूव
Z1 प्लस Z2 ਦਾ Z1 ਦਾ ਮੋਡ ਪਲੱਸ Z2 ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ Z1 ਪਲੱਸ Z2 ਦਾ ਮੋਡ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੂਟ 13 Z1 ਦਾ ਮੋਡ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਇਆ ਨਾ। रूट 10 किहदा मोड आया, Z2 का मोड आया। Z1 प्लस Z2 का मोड क्या है, 41 आया। रूट 13 कितने जो अंदाजा जिहा लाओ, स्क्वायर रूट तो कढ़ना आउंदी हो तुहानूं, लगभग 3.5 तो 3.6 बन जाना अंदाजन जा। सिमिलरली रूट 10 कड्डो, वो 3.3 के करीब बन जाना, रूट की बन जाना। तो रूट ये मान लो एक तो बन जू 3.5, रूट 13 अंदाजा नहीं लेना आपां, ये 3.3 कितना हो गया 8, 6.8 हो गया। ठीक है, हुण रूट 41 स्क्वायर रूट तो कढ़ना आनी चाहिए तुहानूं। रूट 41 की हो जाऊगा लगभग 6.3 बन जू, लगभग कितना बन जू 6.3, 6.4 के लागे बन जू। यानी इधरला पासा 6.8 बन गया, इधरला पासा 6.3, तो किहड़ा वड्डा है, इधर ही वड्डा है। इट मीनस इहदे नालों की है वड्डा है। जे वड्डा है तो अपना की हो गया, रिजल्ट की हो गया, प्रूवड हो गया। गल समझ आ गई। Z1 का मॉड लिया, Z2 का मॉड लिया, Z1 Z प्लस Z2 का मॉड लिया। जिहड़ी दित्ती हुई इनइक्वैलिटी है उन्होंने आपां देखिया कि वो सही है कि नहीं हैगी। आपां लैफ्ट हैंड साइड देखी इनइक्वैलिटी दी, राइट हैंड साइड देखी। जिहड़ा सिंबल दिता है बिल्कुल सही दिता होया सीगा कि लैफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर दैन राइट हैंड साइड, हैंस इट इज़ प्रूवड। अगे चलते हैं, अगे आंदा एडिशन। इनू ब्रैकेट में सबट्रैक्शन पाता क्योंकि एडिशन सबट्रैक्शन एक दूजे नाल जुड़े हुए गल्लां ने। ये किवें जुड़ियां ने, मैं 3 घटा 4 कह रहा या 3 प्लस माइनस का 4 कह रहा, एक ही गल होंदी है। 3 च 4 माइनस कर दो या 3 च जोड़ दो माइनस के 4, ये कोई फर्क नहीं पैंदा। तो एडिशन या सबट्रैक्शन ऑफ ए कंपलैक्स नंबर किवें निकलूगा। पिछली एग्जाम्पल वैसे मैं दसता कि रियल पार्ट दे विच रियल पार्ट जोड़ो, आइटा ला के इमेजनरी पार्ट दे विच इमेजनरी पार्ट जोड़ दो। इस तरीके नाल तुहाडे कंपलैक्स नंबर का जिहड़ा मान लो एक कंपलैक्स नंबर x1 प्लस आइटा y1 है, प्लस एक कंपलैक्स नंबर है अपना x2 प्लस आइटा y2 है, मतलब आ z1 है, दूजा की है z2 है। तो जो आप जोड़ांगे तो की आजू x1 च x2 जुड़ जू, रियल पार्ट च रियल पार्ट जुड़ जूगा, आइटा बाहर आ जूगा, इमेजनरी पार्ट च इमेजनरी पार्ट जुड़ जूगा। इन्नी क गल है। हुण कुछ प्रॉपर्टीज़ ने एडिशन दी, कुछ प्रॉपर्टीज़ ने एडिशन दी। वो प्रॉपर्टीज़ किहड़ियां किहड़ियां ने, सब तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की है, क्लोजर वैसे छोटियां क्लासां भी पढ़ते हैं कि एक कंपलैक्स नंबर दे विच जे आपां दूजा कंपलैक्स नंबर आईए, एक कंपलैक्स नंबर दे विच जोड़िए आपां दूजा कंपलैक्स। जोड़न की गल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी एडिशन नहीं कर रहे आपां। तो जिहड़ा नवां नंबर मिलूगा वो भी की मिलूगा, कंपलैक्स मिलूगा। इट मीनस एडिशन ऑफ कंपलैक्स नंबर इज क्लोजर, वो बंद है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी ते अप्लाई होंदी है कि दो कंपलैक्स नंबर जोड़ के जिहड़ा नवां नंबर मिलता वो भी कंपलैक्स ही होंदा है। इस तो अगली गल कम्यूटेटिव होंदा है कि नहीं होंदा। कम्यूटेटिव का की मतलब है बेटा कि पहला आप मान लो Z1 दे विच Z2 जोड़ता, या पहला Z2 रख लिया बाद Z1 जोड़ता, चाहे इनू ऐ जोड़ लो चाहे ऐ जोड़ लो, आउणगे तां बराबर ही करके देख लो। Z1 च Z2 जोड़ दो या Z2 च Z1 जोड़ दो। इट मीन जी कंपलैक्स नंबर का एडिशन है वो कम्यूटेटिव होंदा है। एक प्रॉपर्टी होंदी है एसोसीएटिव। एसोसीएटिव की होंदी है, ये भी पहला पढ़िया हुई प्रॉपर्टी ने। एक कंपलैक्स नंबर Z1 है, ਉਹਨੂੰ Z2 प्लस Z3 ਦੇ एडिशन ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ दो। ये ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ अलग ਪਏ ਨੇ, मतलब पहला Z2 ਤੇ Z3 ਨੂੰ जोड़ना, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ जोड़ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ना, Z1 ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ना। ਜਾਂ
पहला Z1 ਤੇ Z2 जोड़ लो, आ ब्रैकेट वाली जोड़ लो, बाद की जोड़ लो Z3, ये की आउणगे बराबर आउणगे, इहनूं कहंदे एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। फिर आंदी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की हुंदी है कि किसी कंपलैक्स नंबर दे विच मैं की जोड़ा कि ਉਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ नंबर दोबारा आ जाए, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं Z1 जोड़दा ਤਾਂ फिर Z1 आ जाए। मान लो मैं 0 + 0 आइटा जोड़दा तो कंपलैक्स नंबर ਨੂੰ कोई फर्क पऊगा, नहीं पैना। ਜਾਂ 0 + 0 आइटा 'ਚ मैं Z1 जोड़दा कंपलैक्स नंबर ਨੂੰ कोई फर्क पऊगा, नहीं पैंदा। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 0 + 0 ਆइटा ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਲੀ 0 ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ Z1 'ਚ 0 जोड़न नाल, 0 'ਚ Z1 जोड़न नाल Z1 फिर आ जाता है। तो जी 0 + 0 आइटा ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किहड़ी है? 0 + 0 आइटा। किहड़ी आइडेंटिटी? एडिटेटिव आइडेंटिटी। एडिटेटिव आइडेंटिटी। तो एक गल पक्की याद कर लो, जदों कंपलैक्स नंबर की एडिटेटिव आइडेंटिटी की गल करें तो 0 + 0 आइटा की गल कर रहे हैं आपां। हुण उहदा इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स किवें एग्जिस्ट करूगा? आइडेंटिटी ते इनवर्स एक दूजे नाल इंटररिलेटेड गल्लां ने, पहलां भी पढ़ियां होणगीਆਂ तुसीं। इनवर्स की हुंदा है कि किसी कंपलैक्स नंबर दे विच मैं की जोड़ा, क्योंकि एडिटेटिव इनवर्स की गल कर रहे हैं आपां, मल्टीप्लिकेटिव नहीं, एडिटेटिव इनवर्स जोड़ की गल कर रहे हैं आपां। किसी कंपलैक्स नंबर दे विच मैं की जोड़ा कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी की सी अपनी 0 + 0 आइटा। तो Z दे विच की जोड़ी आपां -Z जोड़ दईए। मान लो 3 + 4 आइटा है, ये मैं जोड़दा -3 -4 आइटा जोड़दा, -3 नाल -3 0 हो जू, 4 -4 0 हो जू, 0 + 0 आइटा हो जू। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ उल्ट कर दो, -Z 'ਚ Z जोड़ दो ਤਾਂ भी ਕੀ ਆਊਗਾ? 0 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਲੈ ਲਓ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡੀਟੇਟਿव ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਜੂ? एडिटेटिव। उम्मीद करदा इन्नी की गल समझ आई होगी। हुण गल करते हैं आपां मल्टीप्लिकेशन दी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंपलैक्स नंबर्स की हुंदा है? मान लो एक Z1 एक Z2, इन्हां दोहां दी गुणा किवें होगी? आपां एग्जांपल नाल चलदे हां। X1 + आइटा Y1 दी गुणा X2 + आइटा Y2 नाल। हुण ध्यान नाल देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ कोई निशानी यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। X1 की गुणा X2 नाल हो जूगी, प्लस X1 की गुणा Y2 नाल हो जू, नाल की आजू? आइटा आ जूगा, प्लस Y1 की X2 नाल हो जूगी, नाल आइटा आ जू, प्लस Y1 की Y2 नाल आ गई, Y1 Y2, आइटा की आइटा नाल आ गई, आइटा स्केयर हो गया। ये कन्फ्यूजन की है? आ तो ठीक है, चलो X1 X2 X1 X2 प्लस ये चो आइटा कढ़ लो बाहर, की रह गया? X1 Y2 X2 Y1। आइटा स्केयर की होंगे? माइनस का एक होंगे, तो ये बन गया -Y1 Y2। तो रियल पार्ट की हो गया? X1 X2 -Y1 Y2। X1 X2 माइनस का Y1 Y2। इमेजिनरी पार्ट की हो गया? X1 Y2 X2 Y1। इदा दो कंपलैक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। एग्जाम्पल नाल भी करके दिखा दूंगा। मान लो एक एग्जाम्पल मैं लैके चलदा। एग्जाम्पल की है? एग्जाम्पल हैगी है कि 3 + 2 आइटा दा प्रोडक्ट लो 2 - आइटा नाल। 3 की 2 नाल मल्टीप्लाई 6, 3 की - आइटा नाल मल्टीप्लाई -3 आइटा, 2 आइटा की 2 नाल प्लस का 4 आइटा, 2 आ गया, माइनस का 2 आऊगा, पर आइटा की आइटा नाल करांगे, आइटा स्केयर हो जू, एक माइनस होर हो जूगी, -1 लिख लो इनू। आइटा की आइटा नाल आइटा स्केयर हो गया, उन्होंने लिख लिया -1। 6 4 आइटा -3 आइटा, एक आइटा रह गया, 4 आइटा 3 आइटा आप घटाते, आ माइनस की हो गया? प्लस हो गया। की बन गया अपना? 8 प्लस आइटा बन गया। कितना बन गया? 8 प्लस आइटा। गल समझ आ गई? ये मल्टीप्लिकेशन है कि कंपलैक्स नंबर की। हुण आपां गल करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ भी होणगियां, जिवें एडिशन दी क्लोजर है,
दो कंपलैक्स नंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, दो कंपलैक्स नंबर की आप मल्टीप्लीकेशन की, जो नवा नंबर आया वह भी की है एक कंपलैक्स नंबर भी है, हैंस इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन के अंडर की है, क्लोज्ड है। नैक्सट है कि कम्यूटेटिव, Z1 की Z2 नाल गुणा कर दो या Z2 की Z1 नाल कर दो, ये इक्को ही गल आऊगी, सेम आऊगी, तो कम्यूटेटिव भी हुंदा है। एसोसीएटिव, Z1 की Z2 नाल करके अगे किहदे नाल कर दो, Z3 नाल कर दो, या Z1 की बाद च कर लो, पहला Z2 तो Z3 की मल्टीप्लीकेशन कर लो, ऐं तो ऐं की आउणगे, बराबर आउणगे। हैंस इट इज़ एसोसीएटिव भी हुंदा है। इदों गल हुंदी है आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी तो इनवर्स की आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव, पहला एडिटेटिव सी, हुण किहड़ी है मल्टीप्लीकेटिव, गुणा की आइडेंटिटी की होगी। किसी कंपलैक्स नंबर को किहदे नाल गुणा करिए कि उही आ जाए, किहदे नाल गुणा करिए 1 नाल, यानी 1 + 0 आइटा नाल, किहदे नाल गुणा करिए 1 + 0 आइटा नाल, क्योंकि 0 आइटा भुल जाओ 1 ही है, 1 की Z नाल गुणा करेंगे Z आ जाऊगा, या Z की 1 नाल कर दो, 1 की Z नाल कर दो, इनू 1 + 0 आइटा तुसीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इनू चाहे 1 + 0 आइटा लिख लो, चाहे कल्ला 1 लिख लो, गल एक ही है। आ की रहा Z रहा, तो जी 1 + 0 आइटा है, या इनू कह लो 1 कह लो, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटेटिव आइडेंटिटी की सी 0 + 0 आइटा सी, मल्टीप्लीकेटिव की है 1 + 0 आइटा है। तेरा इनवर्स किवें निकलना, बेसिकली एग्जाम्पल की समझ आऊ। बेसिक गल ये है कि Z1 किहदे नाल गुणा करिए कि 1 आ जाए, 1/Z नाल करांगे, जे 1/Z1 Z नाल कर लांगे तां भी क्या आ जाऊ 1 आ जाऊगा, तो 1/Z1 Z1 की इनवर्स है, तो 1/Z1 का इनवर्स की है Z1 है। गल गेड़ च आ गई कि नहीं हैगी, तो ये सीगा इनवर्स। एक होर गल, इस तो बाद आप एग्जाम्पल वाल ही चलांगे। कंजूगेट ऑफ ए कंपलैक्स नंबर की हुंदा है, जदों दो वैन टू कंपलैक्स नंबरस, जदों दो कंपलैक्स नंबर ने डिफर फ्रॉम ईच अदर, बाय साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, जदों दो कंपलैक्स नंबर जिहड़ा इमेजनरी पार्ट है साइन करके अलग होण, भी सिर्फ जिहड़ा बाकी गल्लां सेम है, रियल पार्ट बिल्कुल जिन्ना इधर उन्नी उधर होवे, इमेजनरी पार्ट भी होवे तो उन्नी, पर ਉਹਦਾ साइन नैगेटिव या पॉजिटिव का फर्क पै जाए। किवें मान लो एक 3 + 4 आइटा है, एक नंबर 3 - 4 आइटा है, रियल पार्ट की इक्वल हैगी है, कल फर्क काह च पिया इमेजनरी पार्ट च, ये प्लस का सी, ये काहदा हो गया माइनस का हो गया। तो ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ, ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆਪਾਂ Z ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, Z ਬਾਰ। It means Z bar is conjugate of a complex number if we change the sign of imaginary part। जे असी इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिए तो की मिल जाता है, सानू कंजूगेट मिल जाता है। एक गल समझ आ गई। मान लो हुण Z बार है, ਇਹਦਾ भी कहाँ कंजूगेट निकल ही सकता है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ कंजूगेट मैं होर पाता। हुण की करना, रियल पार्ट तो भी रखना है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, पहला नैगेटिव सी, हुण की कर दो पॉजिटिव, हुण फिर दोबारा की बन गया, ये Z बन गया। दूजी गल यह है कि Z बार का अगे फिर बार किहदे बराबर होंदा, Z के बराबर इक्वल आ जाता है। आ Z है, आ Z बार है, Z बार का बार Z के कंजूगेट का कंजूगेट की आ गया, Z आ गया। ठीक है। इस तो अगली गल यह है कि जे आपां Z1 + Z2 है, ਇਹਦਾ कंजूगेट लईए, एक कंपलैक्स नंबर Z1 है, एक Z2 दोनों जोड़न तो बाद आप कंजूगेट लईए, ਜਾਂ ਆਪਾਂ पहला कंजूगेट ले लीए Z1 का तो Z2 का, बाद च जोड़ दिए, एक ही गल आऊगी, करके देख लियो। सिमिलरली Z1 तो Z2 की आप गुणा करती, बाद च की ले लिया कंजूगेट ले लिया, या आप पहला कंजूगेट ले लिया Z1 का भी तो Z2 का भी, बाद च की करती गुणा, ये की आउणगे इक्वल आउणगे। इन्नी क गल कंजूगेट लई सी। आपां कुछ क एग्जाम्पल तो करांगे, एग्जाम्पल तो तुहानूं बहुत कुछ क्लीयर हो जाऊगा। एग्जाम्पल कई तरह दी लाऊंगा मैं, कुछ क एग्जाम्पल मैं इस वीडियो सारी एग्जाम्पल अपनी होनियां नहीं सी एक्सरसाइज दियां, तो मैं कुछ क एग्जाम्पल लाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल अपनी अगली आपां वीडियो लिए आपां छड्ड लांगे। पहली गल की है,
ये सब तो पहली गल है कि ये रीयल तो इमेजनरी पार्ट करो, पता करो, फाइंड रीयल एंड इमेजनरी पार्ट। पहला तो बहुत ईजिली कढ़ लिए तुसीं रीयल तो इमेजनरी पार्ट। इहो जे नंबर के किवें करोगे? इहो जे नंबर के सानू रैशनलाइजेशन करनी पऊगी। रैशनलाइजेशन क्यों करनी पऊगी? क्योंकि डिनोमीनेटर खत्म करना पऊगा। डिनोमीनेटर को कोई रीयल नंबर बनाना पऊगा आपां, कंपलैक्स नंबर ना रहे। ये न्यूमरेटर भी कंपलैक्स है, डिनोमीनेटर भी कंपलैक्स है, पर आपां इस तरीके मैनेज करना है कि जो डिनोमीनेटर है वो कंपलैक्स ना रहे। तो वह करना सिंपल जी गल है कि ये कंजूगेट नाल कंजूगेट पढ़िया ना आपां हुणी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। 1 प्लस प्लस की गल माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा नाल की कर दो, डिवाइड कर दो। उत्ते दा गया 1 माइनस आइटा का स्केयर हो गया। क्यों हो गया? 1 माइनस आइटा की गुणा 1 माइनस आइटा नाल ही होगी। थल्ले हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये की होंदा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी एक का स्केयर माइनस आइटा का स्केयर। हुण इहदा स्केयर खोलांगे, ए माइनस बी का स्केयर की होंदा? ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ए माइनस बी का स्केयर की होंदा? ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 2ab। सिंपल फार्मूला जे नहीं याद तो तुहानूं याद करना पऊगा। 2 × 1 × आइटा 2 आइटा, 1 का स्केयर 1, आइटा स्केयर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 1। आ आइटा स्केयर की हो गया? माइनस 1, 1 का स्केयर 1, माइनस का 1, माइनस 2 आइटा, 1 + 1 2 आ गया, 1 - 1 0 हो गया, 0 - 2 आइटा बाय 2, 0 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे 0, 2 आइटा 2 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे आइटा। हुण ये तो आप रियल पार्ट कढ़ना है, रियल पार्ट ऑफ Z वो तो 0 आ जाऊगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z वो की आ जाऊगा? माइनस का 1। माइनस आइटा ना कह दो, आइटा नहीं लाना, माइनस एदा कोफिशिएंट की आइटा का माइनस 1। तो ये की आ गया अपना इमेजनरी पार्ट। एक एग्जाम्पल अपनी ये होगी, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x + आइटा वाई। इन x + आइटा वाई की शेप च लिखो। किनू? इसनूं। इनू पहला सिंपल बना लो, पहला किवें बना सकते हैं आप? 1 - 2 -5 √5 लिख के नाल माइनस का की बन गया, √ दे विच आइटा बन गया। बटियां दे विच यानी डिनोमीनेटर की है कंपलैक्स नंबर है, तो डिनोमीनेटर वाला कंपलैक्स नंबर किवें खत्म करते हैं? कंजूगेट नाल गुणा कर दो, कंजूगेट नाल डिवाइड कर दो। -2 च नहीं कोई साइन च फर्क पाउणा, इत्थे माल खा जाने हो। कल्ला इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ये नाल गुणा कर देंगे, ये नाल डिवाइड कर देंगे। एक दे उत्ते गुणा करांगे तो आही आ जूगी, आ जू -2 √5 आइटा। ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆ a ਹੈ ਪਲੱਸ b, a ਮਾਈਨਸ b, a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ -2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ √5 ਆਈਟਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, -2 √5 ਆਈਟਾ, -2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4, -5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5, ਆਈਟਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? प्लस ਦਾ 5, -2 -5 आइटा, 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। इट मीन -2/9 -5/9 आइटा। ये की आ गया तुहाडा x + आइटा y की शेप च कंपलैक्स नंबर बन गया। यही आपको करने को कहा गया सी। इस वीडियो में मैं सिर्फ इन्ना की करूँगा। अगले बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ये क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं अगली वीडियो लैके आऊँगा। तो अगली वीडियो तक मेरे नाल बने रहो। थोनों मैं वादा करदा कि तुहानूं जिस तरीके मैं कंपलैक्स नंबर कराता तुसीं उम्र भर मार नहीं खानी, तो तुहानूं बहुत वधिया रिजल्ट मिलणगे। धन्नवाद।